ہمارے وزیر اعظم تو کہتے ہیں کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، اور یہ جو بیٹی بچاؤ کی بات وہ کرتے ہیں اس میں تھوڑا سا کنفیوژن ہوتا ہے کہ وہ جو بیٹی بچاؤ بول رہے ہیں وہ سلوگن دے رہے ہیں کہ تھریٹ دے رہے ہیں کہ بیٹی بول کے لب آزاد ہے تیرے۔ پھر سے ایک بار پاک سرکس کی سرزمین پر عورتیں اپنے اوپر ہو رہے ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے جا رہی ہیں۔ یہ وہی بھارت ہے جہاں عورتوں کو ماں لکشمی اور سیتا کے روپ میں پوجا جاتا تھا، مگر اب یہ وہ بھارت ہو گیا ہے جہاں درندگی کی انتہا ریکارڈ توڑ رہی ہے۔ نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو کی رپورٹ کے مطابق سال 2020-2021 میں 15.3% مہیلاؤں پر ہو رہے ظلم میں بڑھوتری ہوئی ہے۔ گزشتہ سال 4,28,278 ایسے مقدمات درج ہوئے ہیں جو خواتین کی بے حرمتی، جنا اور اغوا جیسے حادثات سے تعلق رکھتے ہیں۔ 28,000 سے زائد عورتوں کا اغوا کر کے انہیں شادی کرنے پر مجبور کیا گیا، جن میں سے 2,200 نابالغ تھیں۔ ہر گھنٹے ایک عورت کی جہیز کی وجہ سے قتل کی جاتی ہے۔ ہر 20 منٹ پر ایک عورت کو زنا بالجبر کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ ہر سال کم از کم 18,000 ماؤں اور بہنوں کی عصمت دری ہوتی ہے۔ ملک بھر میں 45 لاکھ خواتین گھنونے جسم فروشی میں ملوث ہوتی ہیں۔ ایسے کیسز میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ کبھی پولیس پرشاسن اس پر صحیح ایکشن نہیں لیتی ہے تو کبھی کورٹ میں پہنچنے کے بعد اسے ٹھنڈا بستہ میں ڈال دیا جاتا ہے، جس سے بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ اب خود میں منہ چڑھاتے نظر آ رہا ہے۔ مہیلاؤں پر ہو رہے اس ظلم کے خلاف جماعت اسلامی ہند اب سامنے آئی ہے۔ آئندہ 22 جنوری صبح 11 بجے پاک سرکس میدان میں ہمارا مطالبہ حقوق نسواں کی ادائیگی اور تحفظ خواتین کے عنوان سے اجتماع خواتین کا عظیم الشان جلسہ آرگنائز کرنے جا رہی ہے، جس میں امکان لگایا جا رہا ہے کہ پچھم بنگال سے تقریباً 50,000 سے زائد مہیلاؤں کی بھیڑ امڑنے والی ہے۔ یہ ایک بیداری پروگرام ہے جس کے ذریعہ خواتین کو اپنے فرائض سے آگاہ کروایا جائے گا اور اپنے حقوق سے واقف کروایا جائے گا، کیونکہ پچھم بنگال واحد ایک ایسا اسٹیٹ ہے جہاں کی سی ایم خود ایک مہیلا ہیں، اور تمام سروے رپورٹ کے مطابق ممتا بنرجی کو ریاست کے 80% مہیلا اپنے ووٹ بھی دیتی ہیں اور اپنا آئیڈیل بھی مانتی ہیں۔ اس لیے امید کی جا سکتی ہے کہ سی ایم ممتا بنرجی بھی اس پروگرام میں شامل ہو سکتی ہیں۔ اس پروگرام میں مہیلاؤں کے ادھیکار اور ان کے سرکشا پر آواز اٹھانے والی نامور خواتین بھی اس جلسے میں شرکت کریں گی۔ اجتماع خواتین جو 22 تاریخ ساؤتھ بنگال کی پاک سرکس میدان میں ہوگا انشاءاللہ، اور 23 تاریخ نارتھ بنگال کے اجتماع مرشید آباد کے دھولیان میں ہوگا انشاءاللہ۔ دونوں کے مقصد یہ ہے کہ خواتین حضرات جس مشکلات سے دوچار ہے ان کے بارے میں اس طرح کی ماحول پیدا کیا جائے کہ ان کے ساتھ کوئی خراب یا ان کے ساتھ جو برتاؤ ہو رہا ہے اس پہ روک تھام ہو، ان کی جو حقوق ہے حقوق ان کو ملے، اور سماج کی جو اپنا رویہ ہے ان کے ساتھ رویہ میں تبدیلی آئے۔ ان 3 بنیادی نکات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس پروگرام کو کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب دیکھیے جو نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو کی جو رپورٹ ہے اس میں ہر سال کم سے کم 4.5 لاکھ 2021 کی رپورٹ ہے وہ جو اندراج ہوا ہے، اس مقداری کی اغوا کی تقریباً 4,28,000 کی، اور رپورٹ نہیں ہوتا اس کی، اور لاکھوں کی تعداد ہے۔ اتنے بڑے ہر ایک 20 منٹ میں ایک خاتون قتل ہو جاتا ہے، اور 35 لاکھ سے زائد یہاں جنا پر جبر کرنے پر مجبور ہے۔ تو اس طرح کی ماحول ہے یہاں، اور مادر رحم میں جو قتل کی واقعہ ہے، آزادی کے بعد کم سے کم 5 کروڑ جو نسواں ہے اس کو قتل ہوئی مادر رحم میں۔ ایک تو یہ معاملہ ہے جس کو ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے۔ اس طرح کی برتاؤ ان سے نہیں ہونا، وہ تو ماں ہے ہماری، وہ بیٹی ہے ہماری، بہن ہے، اور اس کے علاوہ سوسائٹی چل نہیں سکتا، وہ ہماری بنیاد ہے۔ بنیاد کے ساتھ اچھے سلوک ہونا چاہیے، برتاؤ ہونا چاہیے۔ دوسری بات جو لوگ ان کے ساتھ خراب ویوہار کر رہے ہیں، خراب سلوک کر رہے ہیں، سماج میں وہ بہت ہی ٹھاٹ بات کے ساتھ گھومتے ہیں، پولیس اس کو چھوتے نہیں ہے، جیل سے باہر ہے، حکومتیں پولیس ایڈمنسٹریشن ان کی جو مسل پاور ہے یا منی پاور ہے اس کو دیکھتے ہوئے ان کو چھوٹ دیتے ہیں، اور اس سے یہ جو اپرادھ ہے، جرائم ہے، وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ حکومت بھی اس سلسلے میں یہ ہو کہ جو بھی عوام میں بھی اس طرح اس کی شعور ہو، وہ احتجاج کرے، اور حکومت کو یہ بنائے کہ حکومت یا ایڈمنسٹریشن عدلیہ نظام ان کی جو کام ہونا چاہیے جرائم کو روکنے کی فرائض وہ صحیح ڈھنگ سے انجام دے۔ کوئی مثال ہم نے دیکھا ہے بلقیس بانو کی واقعہ کے ساتھ، ہم نے کشمیر کے واقعہ دیکھا ہے جموں میں جو آصف کا قتل ہوا، مجرم ہے اس کی حمایت میں ریلی نکل رہا ہے، ان کی حمایت میں لوگ چندہ اکٹھا کر رہے ہیں، لوگ چندہ دے رہے ہیں،
निर्भया के मामला है, संजय रेड्डी के मामला है, फिर आपके ये रोहित भूमला की माँ के मामला है, किस तरह से उनको भी धमकाया जा रहा है। इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हैं जो अनगिनत वाक़यात है। ऑल ओवर इंडिया के आंकड़ा है, ऑल ओवर इंडिया के आंकड़ा है और ये बहुत बड़ा आंकड़ा है कि एक साल में 4 लाख 4.5 लाख पुलिस केस रजिस्टर्ड हो असमदारी की, अगवा की, बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। और हर 20 मिनट में एक खातून की कत्ल किया जाता हो, ये तो बहुत ही आज़ादी के इतना दिन बाद भी इस तरह के वाक़यात हमारे सामने आए। और अदालत का मामला ऐसा है कि वहाँ 20 साल 30 साल तक वो केस चलता रहता है, उनको कोई इंसाफ नहीं मिलता है। हम चाहते हैं कि अदालत निज़ाम भी मजबूत हो, हुकूमत इंसाफ दिलाए और कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल वक्त ले कोई भी केस को सॉल्व करने के लिए, इसबंदारी का हो, जबर जबर हो, अगवा की केस हो या कोई भी केस हो, ख़वातीन के साथ जो भी केसेस है उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसको लाया जाए, 1 साल के अंदर उसका केसेस ये हो और उनको इंसाफ मिले। और इस मामले में बहुत सारे ऐसे कानून आए, ख़वातीन की असमदरी का मामला हो, शरखानी का मामला, बहुत सारे ऐसे कानून आए, बट उसमें अमली जामा आपको क्या लगता है, अमली जामा नहीं पहनाया गया या फिर प्रशासन कहीं ना कहीं ये है? इस सिलसिले में 2 पहलू है। एक तो प्रशासन इस सिलसिले में कानून को ठीक ढंग से लागू करने के बारे में वो ये नहीं करते, इससे कानून ठीक ठाक लागू नहीं करते हो। उसकी कई वजह हो सकता है, एक तो मसल पावर, मनी पावर के पीछे वो हट जाते हैं। क्या लग रहा है कितनी ख़वातीन आ सकती हैं? उम्मीद है कि 50,000 उम्मीद है कि 50,000 के करीब ख़वातीन शरीक होंगे इंशाल्लाह। इसको लेकर इस मामले में सीएम को लेकर भी सीएम को आप लोगों ने इनवाइट जी, किया? हमने चाहा कि सीएम चूँकि खातून है और ख़वातीन इज्तिमा है, बड़ा इज्तिमा है, इसमें वो हाजिर रहे, इसमें हमने उनका इन्वाइट किया है। हमें उम्मीद है कि वो इसमें शरीक रहेंगी। हमारे वज़ीर आज़म तो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ये जो बेटी बचाओ की बात वो करते हैं, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है कि वो जो बेटी बचाओ बोल रहे हैं वो स्लोगन दे रहे हैं कि थ्रेट दे रहे हैं कि बेटी को बचा कर देख लो, बचा पा रहे हो कि नहीं। तो वो स्लोगन दे रहे हैं कि थ्रेट दे रहे हैं, इसमें थोड़ा वो कन्फ्यूज़न होता है। तो इन्हीं चीज़ों को सामने रखकर हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि ख़वातीन अपने हुकूक़ के लिए सामने आएँ। और हमारे मुल्क के अंदर ख़वातीन ने हमेशा से फ्रंट लाइन में रहकर जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ाई की है। हिंदुस्तान की आज़ादी की अगर तारीख़ देखी जाए तो हज़रत महल और झांसी की रानी और इस तरह की ख़वातीन के बग़ैर नामुकम्मल है। और अगर हम अपने मुल्क के अंदर भी देखेंगे तो आज़ादी के बाद जो NRC के ख़िलाफ़ जो तहरीक चली, उस तहरीक में फ़्रंट लाइन पर ख़वातीन थी और उन्होंने फ्रंट लाइन पर रहते हुए बहुत कामयाब तहरीक चलाई, शाहीन बाग से लेकर पाक सर्कस तक। तो आज फिर कलकत्ता की सरजमीन पर ख़वातीन जमा होंगी, पाक सर्कस मैदान में ख़वातीन जमा होंगी और अपने हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करेंगी। कितने बजे से ये इज्तिमा 11 बजे शुरू होगा और ज़ोहर की नमाज़ वहाँ पर बाजमात अदा की जाएगी और जोहर की नमाज के फ़ौरन बाद हमारा प्रोग्राम शुरू होगा और ये इंशाअल्लाह 3:30 बजे तक हमारा ये प्रोग्राम चलेगा। इस प्रोग्राम में अक्सरियत मुक़र्रिरीन की ख़वातीन हैं। कुछ कौन से मेहमान ख़ुसूसी में कौन ख़ुसूसी मेहमान की हैसियत से हमारे जमात इस्लामी हिंद की जो सेक्रेटरी हैं विमेन विंग की मोहतरमा अतिया सिद्दीक़ा साहिबा वो आ रही हैं। जमात इस्लामी हिंद के नायब अमीर एस अमीनुल हसन साहब आ रहे हैं। मोहतरमा वज़ीर आला ममता बनर्जी को भी दावत दी गई है और हम उम्मीद करते हैं कि वो भी इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगी। शशि पांजा जो ख़वातीन के ताल्लुक़ से मिनिस्ट्री में हैं, चाइल्ड और वीमेन वेलफेयर की मिनिस्ट्री उनके पास है, उन्होंने भी इस प्रोग्राम में शिरकत का वादा किया है। इसके अलावा सुचंद्रिमा है जो एक बहुत ही वाइब्रेंट आवाज़ है मीडिया पर, बंगला मीडिया की एक बहुत ही मोतबर आवाज़ है, वो भी इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगी। इसके अलावा जमात इस्लामी मगरबी बंगाल के अमीर हल्का मौलाना अब्दुल रफ़ीक़ साहब और जमात इस्लामी मगरबी बंगाल की हल्का ख़वातीन के जो ज़िम्मेदारान हैं उनकी भी शिरकत इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम में होगी। और मुतालबा ये किया जा रहा है कि ख़वातीन के साथ जो जराइम हो रहे हैं उनका फ़ैसला फ़ास्ट ट्रैक अदालतों में किया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के अंदर जो अदालती प्रोसेस है, जुडिशियल प्रोसेस है, उसको कंप्लीट किया जाए। हर महकमा में, हर सरकारी महकमा में एक फ़ास्ट ट्रैक अदालत कायम किया जाए। इंतज़ामिया इस बात को यकीनी बनाए कि ख़वातीन के साथ किसी तरह की बदसलूकी और नाइंसाफ़ी ना हो सके और जो भी मुजरिम हो उन्हें कानून के दायरे में लाया जाए। इसमतदरी जो लोग कर रहे हैं और इस तरह के जुर्म में जो लोग मुलव्विस हैं उनकी हिमायत में खड़ा होने की कोई हिम्मत ना कर सके। स्ट्रीट लाइट और जो है CCTV का इंतज़ाम हर सड़क मुख्तलिफ़ जगहों पर किया जाए। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के सिलेबस में जो है इखलाकी तालीमात को इंक्लूड किया जाए, उसको उसमें शामिल किया जाए
साइबर सिक्योरिटी और साइबर सेफ्टी एक बड़ा मसला हमारे सामने आ रहा है, ख़ास तौर से ख़वातीन के हवाले से अगर बात की जाए तो इसको भी यकीनी बनाना हमारे डिमांड में शामिल है। रियासत भर के अंदर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वहाँ पर ख़वातीन के लिए जो सीट्स हैं वो तनासुब के साथ जो है उन रखा जाए, और ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो जराइम होते हैं उसमें ड्रग्स और शराब, ये बहुत ज़्यादा जो है इसके असबाब को अगर इनलिस्ट किया जाए तो सर फहरिस्त जो असबाब हैं उनमें शराब और ड्रग्स है, तो इसकी मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगाई जाए हमारे रियासत के अंदर। ये भी हमारे मुतालबात में शामिल है। तो इसके लेकर इंशाअल्लाह 22 तारीख को आप देखेंगे कि ख़वातीन जो है वो जमा होंगी पाक सर्कस मैदान में और अपना आवाज़ बुलंद करेंगे। और ये प्रोग्राम जुनूबी बंगाल का है, जिसमें जुनूबी बंगाल के इजला से हमारी बहनें शरीक होंगी, और एक प्रोग्राम 23 तारीख को हम कर रहे हैं जो शुमाली बंगाल का है, जिसमें शुमाली बंगाल की जो हमारी बहनें हैं, नॉर्थ बंगाल की जो बहनें, ये मुर्शिदाबाद के अंदर शमशेरगंज में ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह मुनक़िद होगा 23 तारीख को। तो एक प्रोग्राम हमारा साउथ बंगाल का हो रहा है, एक प्रोग्राम हमारा नॉर्थ बंगाल का हो रहा है, और इन दो प्रोग्राम के ज़रिया हम एक तो ख़वातीन के अंदर बेदारी लाना चाह रहे हैं, साथ ही साथ हुकूमत तक की आवाज़ भी पहुंचाना चाह रहे हैं कि ख़वातीन अपने हुकूक़ के ताल्लुक़ से बेदार हैं, और ख़वातीन अपने हुकूक़ के लिए मर्दों की मोहताज नहीं है, वो ख़ुद आगे बढ़कर अपना हुकूक़ लेना जानती हैं, जैसा कि ख़वातीन ने इससे पहले भी कर दिखाया है ऐसा। तो क्या लगता है कि क्या इससे प्रशासन के कान खुलेंगे? प्रशासन के कान खुले न खुले, लेकिन ये आवाज़ जो है जब गूंजेगी तो यकीनन एक तब्दीली का नकीब ये आवाज़ होगी, और एक नई तब्दीली की सुबह का आगाज़ इंशाअल्लाह होगा। सरकार को आप लोग किसी तरह का डेपुटेशन? देखिए, जमात इस्लामी हिंद का जो काम होता है वो कोई इशू बेस्ड काम या कोई इवेंट बेस्ड काम नहीं होता है। जमात इस्लामी हिंद मगरबी बंगाल में ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क के अंदर जमात इस्लामी ने ख़वातीन को मुकम्मल तौर पर अपनी तंजीम में भी जगह दी है। आपको जानकर खुशी होगी कि जमात इस्लामी हिंद वाहिद तंजीम है, चाहे आप दूसरे सेकुलर जमातों को देख लें या मुस्लिम जमातों को देख लें, जमात इस्लामी वाहिद तंजीम है जिसमें ख़वातीन को जो है मुकम्मल तौर पर उनको नुमाइंदगी दी गई है, और ख़वातीन के विंग हैं, उनके ज़िम्मेदारान हैं, हमारे नुमाइंदगान जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है उसमें उनके लिए सीटें रिज़र्व हैं, और बहुत ही वाइब्रेंट रोल ख़वातीन का जमात इस्लामी जो है वो उसके अंदर में ख़वातीन प्ले करती हैं। तो लोगों को एक जहन होता है कि अगर जमात इस्लामी कर रही है तो सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी को जोड़कर करेगी, तो ये प्रोग्राम किस नौइयत? नहीं, देखिए, जमात इस्लामी कोई भी प्रोग्राम करती हो, चाहे सिर्फ यही प्रोग्राम नहीं, जमात इस्लामी का कोई भी एक्टिविटी होता है वो सबके लिए होता है, इसलिए कि जमात इस्लामी का जो आइडियोलॉजी है वो इस्लाम है, और इस्लाम सबके लिए है। जमात इस्लामी का मंशूर कुरान है जो सबके लिए है। जमात इस्लामी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना कायद तस्लीम करती है जो कि रहमतुल लिल आलमीन है, सबके लिए है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। तो जमात इस्लामी कोई भी आवाज़ बुलंद करती है, कोई भी काम करती है, वो किसी ख़ास मज़हब के लिए, किसी ख़ास फ़िरके के लिए, किसी ख़ास मसलक के लिए नहीं करती है, बल्कि हमारा ये प्रोग्राम सबके लिए है, और इसमें सब लोग आएंगे। आप हमारे जो डिमांड्स है आप उनको देख लीजिए, उसमें कहीं भी लफ्ज़ मुस्लिम या मुसलमानों का हुकूक नहीं, उसमें ख़वातीन के हुकूक हैं। और जब हम ख़वातीन के हुकूक की बात करते हैं तो उसमें हिंदू ख़वातीन हो, मुस्लिम ख़वातीन हो, क्रिश्चियन हो या सिख हो, ख़वातीन जिस मज़हब जिस फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखती हों, सबके हुकूक के ताल्लुक़ से हम गुफ्तगू करते हैं, और यही इस्लाम भी कहता है, और यही जमात इस्लामी यही काम करती है। अपील ये करना चाह रहे हैं पूरे बंगाल की ख़वातीन से कि ये जो 2 प्रोग्राम हमारा हो रहा है, जुनूबी बंगाल की जो ख़वातीन है वो पाक सर्कस मैदान में जुग दर जुग शामिल हों। 22 तारीख को सुबह 11 बजे पाक सर्कस मैदान में जुग दर जुग शामिल हों, और अपनी आवाज़ इस तरीके से बुलंद करें कि शैतानों के दिल लरज़ जाएँ। और 23 तारीख को नॉर्थ बंगाल की जो ख़वातीन है, मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दक्षिण दिनाजपुर, बीरभूम, कोच बिहार की जो ख़वातीन हैं, वो 23 तारीख को शमशेरगंज के प्रोग्राम में शरीक हों और अपने हुकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करें, आवाज़ से आवाज़ मिलाएं, और एक नई सुबह के लिए जो है वो नकीब, एक नई सुबह की वो नकीब बने। को नहीं लगता है कि ये कितना बड़ा चैलेंज होगा सरकार को आप लोग आईना दिखाने के काम करेंगे? देखिए, चैलेंजेस तो बहुत हैं मुल्क के अंदर, और ये भी एक बड़ा चैलेंज है, यकीनन एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन किसी को तो पहल करनी होगी इसके लिए, किसी को तो आगे बढ़ना होगा इसके लिए। और हमारी ख़वातीन अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले में उनका जो एक बहुत ही बेहतरीन तारीख़ रही है उनकी, कि वो शुरू से ही अल्लाह के नबी के ज़माने से लेकर आज तक हमारी ख़वातीन ने फ्रंट लाइन पर रहकर लीड किया है हमेशा से।